Welcome everyone. In this video, we are going to practice a case-based unseen passage and we'll be solving a few multiple choice questions based on that passage. तो केस बेस्ड पैसेज जो है या फिर कोई भी अनसीन पैसेज सॉल्व करने का एक तरीका तो ये होता है कि हम पैसेज पढ़ जाएं फिर क्वेश्चंस देखें और जो भी हमें आंसर लग रहा है उसे हम चूज करें. सेकेंड ऑप्शन ऑफ डूइंग दिस इज कि हम पहले क्वेश्चंस देख लें और उसके अकॉर्डिंग हम पैसेज में ढूंढे कि हमें एक्चुअली आंसर क्या करना है. ओके तो हम यहाँ पे पहले पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. पैसेज है यहाँ पे. Andy DeHart is a shark expert and TV presenter who lives in the United States of America. He has had a lifelong interest in sharks. And is always trying to look for ways to educate the public about them. Many people think that sharks have little or no intelligence, but Andy points out that recent studies have shown that many shark species possess powerful problem solving abilities. जब हम पैसेज पढ़ रहे होते हैं या फिर ये अनसीन है या केस बेस्ड स्टडी है तो हमें क्या करना होता है कि हमें जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं हम उन्हें अंडरलाइन करते रहते हैं जिससे कि आगे के क्वेश्चंस में हमें हेल्प हो जाए. क्योंकि जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं मे बी एग्जामिनर को भी वही चीजें इंपॉर्टेंट लगी हो और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए गए हों. सो आई एम अंडरलाइनिंग ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर. Sharks do not want to attack humans, he asserts. There is no shark species that eats humans as part of its regular diet. In most shark attack cases, the shark leaves after realizing that it has mistakenly bitten a human and not its intended prey. ये यहाँ पे एक ग्राफ है. Whenever graph is given, we have to look at it carefully because ग्राफ से based questions जरूर पूछे जाते हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट राइट फ्रॉम 1950 टू 1960 देन 70 देन 80 90 और 2000 है एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्या है क्वांटिटी इन थाउजेंड्स. ओके तो हम क्या रिलेशन देख रहे हैं. क्वांटिटी इन थाउजेंड क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है यहाँ से यहाँ तक. कब से कब तक 1950 से लेके 2000 तक क्या हो रहा है शार्क कॉट ग्लोबली. जो भी शार्क्स पकड़ी गई हैं ग्लोबली वो नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो हमने ये आइडिया ग्राफ से ले लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पैराग्राफ है. इन एंडीज ओपिनियन ऑल शार्क फिशिंग शुड बी स्टॉप्ड अंटिल द शार्क पॉपुलेशंस हैव हैड टाइम टू ग्रो अगेन. We then need to do a better job of managing the fishing of sharks. However, even if the direct fishing of sharks is stopped, many will still be killed when they are caught up in the nets of boats fishing for other species of fish. Third paragraph. When Andy was a boy, his father worked for a national oceanic organization and Andy traveled with him all over the Caribbean. He grew up by the coast and he has been connected with the sea for as long as he can remember. He also lived near one of the best aquariums in America. Andy then went on to build a career working with sharks in an aquarium environment. More recently, he has been involved with the television and the making of programs about the sharks. Fourth paragraph we have. Andy and his wife had their first child 2 years ago. They were amused and amazed to see what extent their work with animals has proved to be useful in bringing up their daughter. They knew how to observe her behavior and teach her how to do things by rewarding her. Number 5 paragraph. Andy loves sharks and is very passionate about their survival and protection. He feels extremely lucky to have had opportunities working at National Aquarium and the television station which presents the Nature Channel. He never wastes a moment in either place that could be spent educating people about sharks. He does admit that it is probably not possible for everyone to love sharks as he does. However, he does hope to persuade people personally or through the media
to respect sharks and the critical role they play in other environment. His main objective is to keep spreading awareness that sharks are not dangerous man eaters but essential creatures in our oceans, as they provide ecological balance and help to control other species. However, he does hope to persuade people personally or through the media to respect sharks and the critical role they play in our environment. His main objective is to keep spreading awareness that sharks are not dangerous man eaters but essential creatures in our oceans, as they provide ecological balance and help to control other species. Now we have question. Question number 1 we have is, how can it be proved that many shark species are intelligent? A option, their problem solving and social skills. B option is their social skills, and C option is eating humans and their immediate realization of humans, and D option is their oceanic organization. तो यहाँ पे C करेक्ट होता है. जब हम पैसेज पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये वाली लाइन पैसेज में लिखी हुई है कि शार्क आर वेरी इंटेलिजेंट, और जो शार्क्स हैं वो जब किसी ह्यूमन पे अटैक करती हैं तो वो तुरंत ही रियलाइज करती हैं अपनी मिस्टेक और फिर वो उसे छोड़ देती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, व्हाई डज एंडी बिलीव दैट शार्क्स ओनली अटैक ह्यूमंस बाय मिस्टेक? तो हमने इसे जब पढ़ा था तो हमने क्या पाया था कि ए भी सही है यहाँ पे. दे डोंट ईट ह्यूमंस एज अ पार्ट ऑफ देयर डाइट एंड दे लीव आफ्टर रियलाइजिंग दैट इट हैज मिस्टेकनली बिट ह्यूमंस, ये भी था पैसेज में. ह्यूमन इज नॉट इट्स इंटेंडेड प्रे, ये भी था पैसेज में. सो हमारा क्या ऑप्शन होता है यहाँ? ऑल ऑफ दीज. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड एंडीज वर्क हेल्प हिम व्हेन ब्रिंगिंग अप हिज डॉटर? जब अपनी बेटी को वो बड़ा कर रहे थे, पाल रहे थे, तो हाउ डिड हिज वर्क हेल्प हिम? ए ऑप्शन इज ही knows how to teach her, he knows how to teach her things by rewarding her, and B option is he taught her by reprimanding her, and C option is he taught her to observe behavior of others, and D option is connection of animals to the daughter's keenness. ये नहीं डिस्कस किया गया है, इवन ये भी नहीं एग्जैक्टली बताया गया है पैसेज में, और थिंग्स ऑब्जर्व करने को भी नहीं बताया गया है कि वो अपनी बेटी को सिखाते हैं. तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. हाउ ही वाज ट्रीटिंग शार्क्स, सेम थिंग ही अप्लाइड टू हिज डॉटर ऑल्सो, और उससे वैसे ही वो चीजें सिखाते थे. क्वेश्चन 4 वी हैव, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हाउ मेनी शार्क्स वर कॉट इन 1990? ओके, तो अब इसके लिए हमें ग्राफ पे वापस जाना होगा. तो हम ग्राफ पे जब वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि 1990 में हमें देखना है कि कितनी शार्क्स पकड़ी गई थी. तो ये रहा 1990. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ. ओके, तो क्या आता है? ये 700 पे हम पहुँचते हैं, बट ये यहाँ क्वांटिटी किस में दी हुई है? थाउजेंड्स में. तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर कुछ होगा 700,000. तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट हो जाता है. Now we go to the next question. How does Andy hope to educate people about sharks? So first of all, we'll read all the options, then we'll try to find the answer. कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सारे के सारे ऑप्शंस पहले पढ़ें, फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है थ्रू हिज वर्क एट द नेशनल एक्वेरियम. हाँ, ये सही है, ही वर्कड एट नेशनल एक्वेरियम. बी है थ्रू मीडिया. हाँ, उन्होंने मीडिया को भी इन्वॉल्व लिया था, मीडिया की हेल्प ली थी. सी ऑप्शन इज थ्रू द नेचर चैनल. यस, नेचर चैनल ऑफ अमेरिका ऑल्सो ही यूज्ड. सो हम कहाँ पहुंचते हैं कंक्लूजन पे? ऑल ऑफ द अबव. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इवन आफ्टर द असेंडिंग ट्रेंड. असेंडिंग मीन्स कि अप जाने वाला, जो मैंने ग्राफ के वक्त आपको बताया था. इन विच ईयर द नंबर ऑफ शार्क्स कॉट रिमेन्ड द सेम? कौन से साल में जो शार्क्स पकड़ी गई थी वो नंबर सेम रहा? तो अब इसके लिए हमें फिर से वापस ग्राफ पे जाना पड़ेगा. हमें ये देखना है कि जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ही जा रहा है, फिर भी कौन से साल में जो शार्क्स हैं उनका नंबर सेम रहता है. तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप यहाँ 1970 के पास देखें तो ऊपर जाके यहाँ से यहाँ तक
सेम ही है, फाइन। तो ये वाला जो ईयर है ये कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, हम देखेंगे समवेयर इन द मिडल। तो 70 से 80 के मिडल में क्या आएगा, ऑब्वियसली 75 आएगा, 1975। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये होना चाहिए। हम देखें ये ऑप्शन दिया हुआ है या कि नहीं। हमने ये वाला इसलिए चूज किया क्योंकि ये दोनों इसी ड्यूरेशन का है ना, 1970 से लेके 75। सो नाउ लेट अस सी दिस ऑप्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट। 1975 इज द ऑप्शन गिवन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट। नाउ वी रीच टू द सेवेंथ क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग हैज एंडी बीन इंटरेस्टेड इन शार्क्स? सो लेट अस चेक वन बाय वन ऑल द ऑप्शंस। लाइफ लॉन्ग, यस। सिंस ही वॉज अ बॉय, ऑब्वियसली जब लाइफ लॉन्ग है तो सिंस ही वॉज अ बॉय, ये भी करेक्ट ही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंडी? A option, build a career working with sharks in an aquarium. Keep spreading awareness that sharks are not man-eaters. C option we have, sharks are the essential creatures in our oceans. And D option is both B and C. तो ये तो already he is working, so this cannot be his objective. So keep spreading awareness that sharks are not man-eaters. This is his objective, and sharks are the essential creatures in our ocean. This also is his objective कि ये चीजें वो spread करें लोगों में। तो we reach here option D, both B and C. So this way we did all the 8 questions based on case based paragraph passage. तो ये बात ध्यान रखिएगा कि whenever you are given case based passage in your exams, then you will be getting 8 questions and out of 8 you are supposed to solve 6 question. ये मैं बात कर रही हूँ CBSE क्लास 12th और 11th की। I hope you understood how to do case based passages. That was all for this video. Thank you everybody for watching.